Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are great and doing fantastic in your life. So today we will discuss about FDA. FDA means Food Drug and Administration. We will talk in this video about what is FDA, what are the responsibility which comes under FDA, why FDA is so important in pharma sector, and what are the divisions which comes under FDA. So without wasting any time, let's just get started with the video. FDA means Food Drug and Administration. It is a federal agency which comes under Department of Health and Human Services. It is a regulatory body which comes under Government of US. So everyday American, thanks to FDA, to the food they eat, the medicine they have, even the cosmetics they wear, because ये सारी ही चीज़ें FDA के अंडर आती हैं, यानी कि FDA इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है. So basically FDA works in protecting human health. So FDA regulates drug product, not only drug product, it also regulates medical devices, cosmetics, tobacco products, biological products, etc. These FDA regulations are in place to ensure the safety, efficacy and qualities of the drug product. So basically all the pharma industries is dependent on FDA to provide approval to market their product in US. So let us know about the brief history of FDA. FDA was formed in 1906, means 116 साल पहले, and it has 1800 employees currently. Its headquarters is located in White Oak Campus, Silver Spring, Maryland, US. So currently agency executive commissioner is Robert Califf in FDA. So there are multiple divisions in within FDA. If you see the organization chart of FDA, they are divided into multiple divisions, and each division has a separate role to regulate tobacco, medical devices, food products and drug products. So mainly here we talk about two divisions, CBER and CDER. CBER is Center for Biologics and Research, and CDER is Center for Drug Evaluation and Research. So CBER mainly regulates the products such as vaccine, blood, gene therapy kind of drugs. On the other hand, CDER regulates the OTC medicine and prescription medicines. So here now the question comes, why FDA is so important in pharma? सो अगर आपको फार्मा फील्ड के बारे में थोड़ा भी पता है तो आपको ये पता होगा कि यूएस एफडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एजेंसी है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए. इसके बहुत सारे रीज़न हैं. वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि यूएस बहुत बड़ी मार्केट है और वो बहुत ज़्यादा बल्क में एडवांस में ड्रग प्रोडक्ट्स को अपने पास स्टॉक करके रखते हैं. इवन जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है वो उनको भी प्रोवाइड करते हैं. पेमेंट वो डॉलर में करते हैं. तो ड्यू टू प्राइस एप्रिसिएशन भी कंपनीज़ को बहुत बड़ा मार्जिन मिल जाता है अपने प्रोडक्ट्स में, और ऊपर से कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि तो बहुत बल्क में अमाउंट जो है वो एक्सपोर्ट होता है. सो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि यूएस को मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनीज मार्केटिंग के लिए प्रेफर करती हैं, और इवन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. आप अगर नोटिस करोगे तो जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी मार्केटिंग लिस्ट में यूएस कंट्री तो पक्का होती ही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा उनके रेवेन्यू में पार्ट प्ले करता है. वैसे तो और भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पर यूएस ही इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका एक और रीज़न ये भी है कि जो जीएमपी इंस्पेक्शन होता है या जो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन होता है, ऑडिट होता है, वो यूएस एफडीए का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है. सो किसी भी कंपनी की जो रैंकिंग है या जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा अप या डाउन हो सकता है यूएस एफडीए के अप्रूवल से पहले और बाद में. अगर उसका अप्रूवल आ जाता है किसी कंपनी को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अप्रूव हो जाती है, तो जो कंपनी है उसके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा अप हो जाते हैं और उसको बहुत फ़ायदा मिलता है. आप अगर देखोगे कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनका ऑडिट जैसे ही सक्सेसफुल होता है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. वहीं अगर किसी कंपनी का यूएस एफडीए ऑडिट फेल हो जाता है तो उस कंपनी के बंद होने तक की नौबत आ जाती है. तो यूएस एफडीए का ऑडिट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के रैंकिंग या रेवेन्यू को एस्टैब्लिश करने के लिए. तीसरा और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि जो मोस्टली जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या फैसिलिटी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो भी मशीनरीज यूज़ होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, उन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो मोस्टली यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं जिनका ऑडिट ऑलरेडी यूएस एफडीए द्वारा किया जा चुका होता है और टाइम टू टाइम किया जाता रहता है. सो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी हो जाती है यूएस एफडीए को इन मशीनरीज़ का इंस्पेक्शन करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी इससे फेमिलियर होते हैं.
तो दैट इज़ वाई भी यूएस एफडीए का ऑडिट बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और स्ट्रिक्ट हो जाता है। और लास्ट रीज़न जो कि यूएस एफडीए को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है वो ये है कि बहुत सारी जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं वो यूएस एफडीए के अप्रूवल के बेस पे ही अपने कंट्री में मार्केटिंग अलाउ करती है, यानी वो अपनी तरफ से कोई भी इंस्पेक्शन नहीं करती हैं या बहुत ज़्यादा डिटेल रिव्यू नहीं करती हैं। वो देखती हैं कि अगर कंपनी के पास इस पर्टिकुलर ड्रग प्रोडक्ट का ऑलरेडी एफडीए अप्रूवल है, यानी वो यूएस में मार्केट हो सकती है, तो वो उसको अपनी कंट्री में एक्सेप्ट कर लेती है फॉर मार्केटिंग। और इसका वन ऑफ द एग्जांपल तो इंडिया ही है। इंडिया अपनी तरफ से कोई खास ऑडिट वगैरह नहीं करती है किसी भी फार्मा कंपनी का, वो जस्ट ये देखती है कि यूरोप एफडीए से अप्रूव है, तो यानी कि हम इसके बेस पे नॉट ओनली इन यूएस अदर मार्केट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगा हो कि आपको इससे कोई वैल्यू मिली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट basic regulatory procedures to take approval for marketing and clinical trials from US FDA. Till then, take care. Bye bye. Device is the tobacco of the main reason ये है कि इसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये है, इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि जो तीसरा रीज़न ये भी है कि जो, और वन ऑफ द मेन रीज़न, ये मैंने अच्छा नहीं बोला बाय द वे, इंडस्ट सभी फार्मा से क्या बोल रही हूँ मैं यार।